Hello everyone. As CLAT or consortium has already released the answer key, and there are few things which I thought I'll discuss in this particular video because very soon, around 10th or 12th, we are expecting that counseling process will start, and I'm sure by this time majority of you have already checked your scores, and you might have seen all those predictions in terms of getting the NLUs, the cutoffs. You might have seen on internet as well, and we have also given the same thing. So counseling process will start once the ranks will come. So around 12th आपका ये counseling process start हो जाएगा for getting admissions in national law universities. In this particular video, I'll take you through the step-by-step process of what this counseling process is all about, right? The first major thing which is coming up, and we are getting the queries from students and parents as well, कि काउंसलिंग के वक्त क्या हमारा फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो द आंसर इज़ नो, राइट. सो आपको कहीं पर भी फिजिकल प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. द काउंसलिंग वर्ड इज़ गोइंग ऑन टिल द टाइम जब फिजिकल इसका इंटरवेंशन चाहिए होता था. अभी आप कहीं पर भी हैं, आप आराम से इस काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. नाउ व्हाट आई विल डू इज़ I'll just taking the clue from the past year notification regarding counseling. I will like to share with you what is this counseling process all about. Now, it basically starts when, based on your rank, you will get a mail from consortium कि आप counseling process का हिस्सा बनिए. Now, the point is, to be honest with you, if you are getting a mail from NLU, irrespective of you want to get into that NLU or not, or you have that marks or not, अगर आपके पास मेल आया है तो मेरा ऐसा मानना है कि you should definitely be a part of the counseling process. इसके लिए आपको online you need to make a payment of 30,000 rupees approx, and that is it. That's where your counseling process starts. So please make sure कि आप and this payment, whatever you are paying, this is totally refundable. अगर आप उस NLU में नहीं जाना चाहते हैं तो ये अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, राइट. सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट पार्ट. I'll take you through the process what exactly this counseling process is all about. Now the point number 1, आपको एक मेल आएगा. आप प्लीज़ अपने मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है, along with that the mail ID, the registered email ID, you will get message, you will get mails that your counseling process के लिए आप eligible हैं. So it doesn't guarantee that counseling process का अगर आपको मेल आया है which means you are selected for NLU. No, it definitely means that 5 rounds, 5 rounds होंगे आपके, 5 कट ऑफ्स निकलेंगी, तब तक आपको कंसिडर किया जाएगा. सो मेक श्योर कि आप काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनिए. और 5 लिस्ट के बाद भी कई बार ऐसा होता है दैट एनएलयूज के अंदर कहीं ना कहीं सीट्स एम्प्टी, सीट्स वेकेंट होती हैं, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी कंसिडर्ड. बट अगर आप वो अमाउंट पे नहीं करेंगे तो आपको शायद कंसिडर भी नहीं किया जाएगा. सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट, so if you see the video here, so you will receive, as it is mentioned, that you will receive an email invitation to participate in the admission process at the registered email address. The candidates will get that. Please ignore the timelines whatever you are seeing here, because that is this is the last year process which I am showing it to you. Now going further, इसके अंदर आगे चलते हैं. So as it is mentioned, it was last year, probably they might increase this year, I don't know. Candidates from general category have to pay 30,000 rupees, and candidate from ST, SC, OBC and EWS and all those categories, you have to pay 20,000 rupees. So this is the first process wherein the complete payment is online. It has to be paid through a portal only. आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जहाँ पर आपने अपना एडमिट कार्ड देखा था वहीं पर जाके आप जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं. As it is mentioned, the counseling registration fee for the admission process is refundable. It's a refundable. इसके क्या क्या प्रोसेस रहेंगे वो बाद में आप देख सकते हैं. जो भी वो आपको रेफर करने के लिए बोले वहाँ पर बिल्कुल सीधा टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है, ठीक है. नाउ जब आपका पेमेंट हो गया, आई एम नॉट गेटिंग इनटू मच इनटू द निटी-ग्रिटीज, नॉट एंड इनटू द डिटेल. आपका जब पेमेंट हो चुका है, अब आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे. प्लीज इन ऑप्शंस को ध्यान से सुनिएगा. द फर्स्ट थिंग इज फ्रीज ऑप्शन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ फ्रीज ऑप्शन, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको
लेट्स से NLSIU मिल गया है, ठीक है। अगर मान लो, चलो NLSIU इज अ रॉन्ग दिस थिंग टू कंसिडर बिकॉज मैं आगे ऑप्शंस नहीं समझा पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको GNLU मिल गया है, ठीक है, विच इज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। If let's say you have been allotted GNLU, so the options which will be there in front of you, the first is the freeze option. What is the freeze option? That you are accepting. वहां पर अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, which means what? That आप बाकी के जो सब्सिक्वेंट राउंड होंगे काउंसलिंग के, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो मिला आप उसके अंदर खुश हैं, आपने इस सीट को फ्रीज कर लिया है। विच मीन्स अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, जहां पर आपने यहां जो 30,000 रुपीज पे किया है, द सेम अमाउंट विल बी एडजस्टेड, मतलब वो अमाउंट जो एडजस्ट हो जाएगा जब भी आप NLU की फीस पे करेंगे। सो दिस इज फ्रीज ऑप्शन, ठीक है। अब पॉइंट इज, अगर आपने लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन GNLU नहीं रखा था, ऑब्वियसली नहीं रखेंगे आप, आपके शुरू के कुछ ऑप्शंस इस तरीके से रहते हैं, यू माइट हैव केप्ट NLSIU, यू माइट हैव केप्ट लेट्स से NUJS, यू माइट हैव केप्ट नालसार। अगर आपने ये सारे ऑप्शंस रखे हैं और उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने फोर्थ में GNLU रखा था, सो द सेकेंड ऑप्शन विच विल बी विजिबल टू यू इज द फ्लोट ऑप्शन, ठीक है। फ्रीज के अंदर आप आगे कुछ नहीं कर सकते, इट इज फ्रीज्ड, ठीक है। अब अगर आपने ऑप्शन फ्रीज कर दिया है, उसके बाद आपको एग्जिट करना होता है काउंसलिंग प्रोसेस से कि मैंने फ्रीज कर दिया है, नाउ आई एम एग्जिटिंग इट, ठीक है, मतलब मेरा सब कुछ प्रोसेस हो गया, वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आ जाएगा। फ्लोट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि मैंने इसको कंसिडर तो कर दिया है, ठीक है, बट स्टिल आई वॉन्ट कि अगर कहीं पर चांस मिले तो ऊपर के नीचे प्रेफरेंस के अंदर तो मुझे कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मेरे को नीचे का NLU मिला है, ऊपर का NLU नहीं मिल पा रहा है, तो फ्लोट ऑप्शन आप कंसीडर करें, तो आपने जो एग्जिस्टिंग चूज किया है वो तो आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा, प्लस यू ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड फॉर द NLUs which are above your, which are basically the top in your preference list. Always ऊपर जाना अलाउड है, ऊपर की प्रेफरेंस लेना अलाउड है, नीचे प्रेफरेंस नहीं जा सकते। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्लोट ऑप्शन के बाद मुझे शिमला मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फ्लोट ऑप्शन के बाद आपको ऊपर के ऑप्शंस में से ही कंसीडर किया जाएगा। दैट इज समथिंग इन काउंसलिंग प्रोसेस विच इज गिवन क्लियरली। और अगेन ये फ्लोट ऑप्शन आपके लास्ट तक रहेगा, फ्लोट ऑप्शन, अनटिल एंड अनलेस आपको वहां से आ जाए कि ठीक है अब ये फ्लोट ऑप्शन आपके लिए खत्म हो गया है, अब आप कंफर्मेशन भी रख लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखिएगा क्या लिखा हुआ है उन्होंने, टू एक्सरसाइज द फ्लोट ऑप्शन इन द थर्ड और द फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग। मान लो अगर आपका NLU एलोकेट होता है, आपको फर्स्ट और सेकंड में एलोकेट होता ही नहीं, अगर आपको NLU एलोकेट हुआ थर्ड या फोर्थ लिस्ट के अंदर और वहां पर अगर आपका फ्लोट ऑप्शन आता है, तो देखेंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, अ कैंडिडेट शैल पे द यूनिवर्सिटी फी टू द NLU। आप NLU को यूनिवर्सिटी फी तो दे ही देंगे, इफ पेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग in respect of the seat allotted to them in that round of counseling within the time stipulated in the admission counseling calendar. So again they are saying अगर आपका करंट स्टेटस के अंदर मतलब फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट के अंदर आपका नाम आया और अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका बाद में जिस भी NLU में जा रहे हैं वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। वरना अगर आपने कोई भी NLU में एडमिशन ले लिया है और उस NLU में एडमिशन लेने के बाद अगर आपने वहां पे कर दिया और उसके बाद फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज होता है और अगर आप ऊपर वाले NLU में जाते हैं, तो आपको NLUs के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। एंड एज ऑफ नाउ जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें आएंगी, यू कैन गेट इन टच विद योर मेंटर्स, विद योर फैकल्टीज। आई थिंक दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। सो मैंने फ्रीज का ऑप्शन बताया था, मतलब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने फ्लोट का ऑप्शन बताया है कि आप ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं, दैट इज फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज कमिंग अप is the exit option. Now what exactly this exit option is all about? Okay. If at any time after completing the registration process a candidate does not want to participate any further in the counseling process, you may choose to exit the admission counseling process. अगर आपको लग रहा है कि मुझे आगे काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना है,
तो आप एग्जिट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और एग्जिट ऑप्शन के अंदर आपको जो ये फीस है, काउंसलिंग फीस, ये आपकी रिफंड हो जाती है। ये आपको पूरा की पूरा रिफंड मिल जाएगा काउंसलिंग फीस का, राइट। सो काउंसलिंग फीस इज रिफंडेबल, प्लीज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहिए। नाउ देयर इज अ सेकंड फीस विच इज अ कंफर्मेशन फीस। अभी कंफर्मेशन फीस क्या है कि अगर आपने कोई भी एनएलयू फ्रीज कर लिया है, कोई भी एनएलयू आप जाना चाहते हैं, आपको 20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा एज कंफर्मेशन फीस कि हम 20,000 रुपये हमने दे दिया है, अब हम कंफर्म्ड इस एनएलयू का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उस केस के अंदर अगर आप लेट्स से बाद में सीट नहीं लेते हैं तो ये 20,000 रुपीज आपको फोरफिट करने पड़ेंगे। आई रिपीट, काउंसलिंग फीस आपकी रिफंडेबल होगी, बट अगर आपने सीट लेके और वहां नहीं पहुंचे हैं तब ये आपकी फोरफिट होती है। तो ये दो फीस आपको ध्यान रखनी है। तो अभी एज ऑफ नाउ आप काउंसलिंग फीस का ही ध्यान रखिए। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग, देयर आर 5 राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग, और जून, इस केस के अंदर जून 2024 तक, आई रिपीट जून 2024 तक आपका काउंसलिंग चलेगा। सो हिम्मत मत हारिएगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर you give your boards, those who are in 12th, you're preparing for boards, prepare for your boards properly, and don't now take this thing कि मेरा नहीं होगा या I'll not be getting any seat. There are five counseling rounds which will happen, and you have options not only till June. देखिए अगर यहाँ पर next जो आप दिखा हुआ है that after the 5th round of the admissions, अगर आप 5th round of admissions की बात करेंगे, the central admission process conducted by the consortium will be closed. जब कंसोर्शियम का प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, मेंबर एनएलयूज, मतलब जितने भी एनएलयूज 26 एनएलयूज जो हैं, दे मे देयर आफ्टर एडमिट द कैंडिडेट्स टू फिल द रिमेनिंग वेकेंट सीट्स। अगर कोई भी सीट वेकेंट रह जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो वो भी आपको मिल सकती है। सो थिंग्स टिपिकली मेक श्योर दैट परसिवरेंस रखना बहुत जरूरी है, वेट and make sure that you are in the game till July August, right? So that is what you need to understand. So फिर again they have mentioned it, what exactly is the refund procedure of the counseling registration fee. So all these things detail which you can see. Again, very important, required documents. What are the documents which are required as far as admission counseling process is concerned? ये डिटेल के अंदर आपको दे रखा है कि यूजी प्रोग्राम के अंदर we need and the 10th mark sheet. So now a very important thing which is there are the required documents, right? So if you see here the required documents, the first thing which you need is a CLAT 2023 admit card. That is the first thing which is required, ठीक है? After that so the admit card I think आप लोगों ने सेव करके रखा होगा, and very importantly जो हम लोग पहले भी बोलते हैं, the invigilator's signature has to be there in that. Grade 12 statement of marks, जिनका नहीं आया है नॉट नेसेसरली वो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन अ करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट. तो आपके पास जो भी लास्ट कंडक्ट सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट है, यू हैव टू सबमिट दैट एज वेल. माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव एनी, राइट. योर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर डोमिसाइल रेजिडेंट कैटेगरी सीट दैट हैज टू बी सबमिटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल काउंसलिंग. सो ऑल दिस थिंग्स इज नेसेसरी in the counseling process, so that is something which is needed. So please make sure कि आप लोग इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रेडी हैं, और फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कंसर्न आता है, so you can get in touch with us at any given point of time. So thank you and stay connected.